Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies and revise your previous chapters. Today we are going to do our chapter 8, which is Introduction to Python. So in this chapter, हम लोग एक high level programming language के बारे में study करेंगे, which is Python. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is Introduction to Python, and the topics which we will discuss in this chapter are computer programs, what is Python, how to install Python, starting Python software, components of Python window, working on Python, data types, and variables. Now we have an amazing thought which says failure is simply the opportunity to begin again and this time more intelligently. Now we have an activity which says solve the following expressions using BODMAS rule you learnt in your math class. तो BODMAS rule होता है bracket of division, multiplication, addition and subtraction. तो our very first question here is हमें यहाँ पे इसको solve करना है using BODMAS rule. तो सबसे पहले हम brackets को solve करेंगे. It will be 44 plus minus 2 divided by 6 plus 3 minus 11 into 6 66. So now it will be 44 minus, अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब करेंगे डिवीजन. तो 2/6 plus 3 minus 66. Now it will be minus 19 minus 2/6. Then minus 58 upon 6 it will be. So the answer here will be minus 19.3. Similarly, you will do the next question by solving brackets, then division, multiplication, addition and subtraction. Now let's start. Kavya says, hello Mayank, do you know what Python is? He replies, yes Kavya, Python is a programming language like others. Just remember other languages and you won't face any problem. In this chapter, we shall learn about this language. Then she says, thanks Mayank, you are an intelligent boy and let's begin. तो बिफोर यू स्टार्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एंड व्हाट दे डू, कि वो करते क्या है. कंप्यूटर प्रोग्राम एक सीक्वेंस होता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखे जाते हैं यूजिंग स्पेशल लैंग्वेज टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क बाय द कंप्यूटर. तो व्हाट आर कंप्यूटर प्रोग्राम? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कुछ रूल्स को फॉलो करता है बाय अ चूजन लैंग्वेज. विदाउट प्रोग्राम्स कंप्यूटर जो है वो यूजलेस है. प्रोग्राम एक रेसिपी की तरह होता है. ये कंटेन करता है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स एंड अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट. और ये हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है विद द वेरिएबल्स. कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं जो रेंज करता है फ्रॉम 2 लाइन्स टू मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया जाता है टू कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स. जो टर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो यूजुअली रेफर करती है टू हाई लेवल लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामर लिखता है टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर ताकि वो कुछ टास्क परफॉर्म करे और एक टास्क को अकम्प्लिश करे. There are hundred of programming languages which are used to write computer programs such as Python, Java, Basic, C, C++, COBOL, Fortran, Ada and Pascal. Now what is Python? Python क्या है? Python एक free and open source programming language है. ये बहुत easy है to learn and provide करती है powerful typing. Python code has a very natural style so that ये बहुत easy है to read and understand. जो code है हम उसको एक बार लिख सकते हैं और उसको almost many times run कर सकते हैं on computer without need to change the program. Now, while implementing Python, Van Rossum was also reading the published scripts from Monty Python, Flying Circus, BBC comedy series from the 1970s. Since he wanted a short, unique, slightly mysterious name for his invention, so he got inspired by the series, named it Python. Now, Python एक high level interpreted general purpose programming language है. इसको क्रिएट किया है गाइड वैन रॉसम ने एंड रिलीज किया है इन 1991. इसका यूज किया जाता है फॉर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग. फीचर्स क्या है पाइथन के? पाइथन इजी टू लर्न है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावास्क्रिप्ट, जावा एक्सेट्रा. ये यूजर फ्रेंडली है एंड इजी टू मेंटेन है, फ्री टू यूज एंड डाउनलोड है. एक सिंपल सिंटेक्स के साथ आती है और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. ये प्रोवाइड करती है ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. हम इसका यूज कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
और हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन। ये बहुत पोर्टेबल है, इट कैन रन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड हैज द सेम इंटरफेस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। नाउ पाइथन के क्या क्या यूजेस है? पाइथन एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस एंड मेनली यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशंस, बिल्डिंग डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, developing games, doing scientific and numeric computations, developing artificial intelligence applications and programming the robots। तो इन सभी फील्ड में हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे विद दिस एड्रेस और क्लिक करेंगे डाउनलोड पाइथन वर्जन पे। देन व्हेन द डाउनलोड इज कंप्लीटेड, जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है आपको डबल क्लिक करना है फाइल को एंड फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शंस टू इंस्टॉल इट। नाउ क्लिक ऑन द रन बटन टू इंस्टॉल पाइथन। फिर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पे। पाइथन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा एंड व्हेन इट फिनिशेस एक स्क्रीन अपीयर होगी जो बोलेगी सेटअप वाज सक्सेसफुल। फिर आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है और जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए एक प्रोग्राम होता है आइडल, वो भी इंस्टॉल होगा अलोंग विद इट। नाउ स्टार्टिंग पाइथन सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को शुरू कैसे करना है? पाइथन आइडल मोड प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू वर्क विद पाइथन। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, देन हम पाइथन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन आइडल पाइथन 64 बिट। पाइथन शेल विंडो अपीयर हो जाएगी आपके मेन्यू के साथ। पाइथन को यूज किया जाता है फॉर मेनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो जब भी आप आइडल को ओपन करते हो जो स्क्रीन अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं पाइथन शेल विंडो एंड थ्री एरोज ये जो होते हैं हम इनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो प्रॉम्प्ट है ये सिग्निफाई करता है कि जो पाइथन है वो वेट कर रहा है फॉर अस टू गिव अ कमांड। अब ये हाँ, यहाँ पे हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार एंड स्क्रिप्ट एरिया। तो टाइटल बार एज वी ऑल नो ये टॉप पे प्रेजेंट होता है स्क्रीन के, उसे हम टाइटल बार बोलते हैं और ये डिस्प्ले करता है मेनी आइटम्स, सम ऑफ देम आर एक्टिव, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। मेन्यू बार कंसिस्ट करता है वेरियस मेन्यूज विद डिफरेंट ऑप्शंस जैसे फाइल, एडिट, शेल, डीबग ऑप्शन, विंडोज एंड हेल्प। फिर आता है स्क्रिप्ट एरिया जो एक वाइट स्पेस एरिया होता है और हम उस पर अपने प्रोग्राम को टाइप करते हैं। स्टेटस बार ये प्रेजेंट होता है एट द बॉटम ऑफ द विंडो और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन जैसे लाइन नंबर, कॉलम नंबर एटसेट्रा। वर्किंग ऑफ पाइथन, पाइथन की वर्किंग कैसी होती है? दो मोड्स में होती है, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है? ये एक कमांड लाइन शेल है जो हमें एक इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करता है फॉर ईच स्टेटमेंट। तो जब भी हम प्रीवियसली टाइप स्टेटमेंट्स को रन कराते हैं इन एक्टिव मेमोरी, तो इंटरैक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मींस आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो कमांड, वन कमांड एट अ टाइम एंड पाइथन एग्जीक्यूट करता है गिवन कमांड को देयर एंड देन गिव्स यू आउटपुट इन द इंटरैक्टिव मोड। तो जब भी हम अपनी कमांड टाइप करते हैं इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, फॉर एग्जांपल दिस 6 + 7 = 13, तो इस तरीके से हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है फॉर द कमांड्स वी गिव। Now, simple program using interactive mode. Type the following command next to the prompt and press enter की। आपको prompt के next में ये command enter करनी है और फिर enter की को press करना है। आप ये देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। Now using idle as calculator. Idle को आप एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हो? You can also perform calculations using Python interpreter। तो जो इंटरप्रेटर है वो एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह एक्ट करता है। लाइक दिस, आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस कराओगे वो यहाँ पे सॉल्व करके हमें देगा। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट 56 + 32 ये आपको प्रोवाइड करेगा आउटपुट 88। तो सम ऑफ अदर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। ये जो एक्सप्रेशंस है ये इवैल्यूएशन है यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड जो बॉडमास रूल है वो फॉलो होता है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन पाइथन। स्क्रिप्ट मोड, यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड के अंदर एक कमांड एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होती है एंड दोज कमांड्स कैन नॉट बी सेव। तो अगर आप रीयूज या एग्जीक्यूट करना चाहते हो उन कमांड्स को लेटर ऑन, तो आपको उन्हें सेव करना पड़ेगा फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ फाइल। टू डू दिस स्क्रिप्ट मोड का यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट मोड को हम यूज करते हैं जब भी हमें अपनी प्रोग्रामिंग लिखनी होती है विच कंटेन्स मोर देन वन कमांड और इंस्ट्रक्शन। तो स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो इन अ टेक्स्ट फाइल, देन उसको सेव कर सकते हो विद .py एक्सटेंशन विच स्टैंड्स फॉर पाइथन। एंड जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है वो एडिट विंडो के अंदर लिखी जाती है। एडिट विंडो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है
with two additional menus, that is format and run, for example notepad. Now writing program script mode, तो हम क्या करेंगे, पाइथन आइडल खोलेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, वहां से न्यू फाइल ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, एक एडिट विंडो अपीयर हो जाएगी, टाइप करना है अपना पाइथन कोड इन द एडिट विंडो, फिर आपको प्रिंट कराना है, हेलो फ्रेंड्स वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग. नाउ द टेक्स्ट will appear in different color. Editor will color different parts of the Python syntax in special color. नेक्स्ट इज सेविंग अ पाइथन प्रोग्राम. पाइथन प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस एस बटन को भी प्रेस कर सकते हैं. सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां पे अपनी फाइल को एक नेम देना है, फॉलोड बाय .py एक्सटेंशन, देन फॉर एग्जांपल file.py. फिर आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे टू सेव योर पाइथन प्रोग्राम फाइल. पाइथन प्रोग्राम फाइल जो है वो हमेशा एक नेम के साथ आती है, एंड होता है जो .py के साथ, and follow the given steps to run Python program in editor window. सबसे पहले आप रन मेन्यू पे क्लिक करोगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे कमांड पे, या फिर आप F5 की का भी यूज कर सकते हो. एंड देयर इज अ शॉर्टकट F5 टू रन मॉड्यूल एंड .py पाइथन फाइल फॉर्मेट या फिर एक्सटेंशन होता है. डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स को हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई वैल्यू डिफाइन करनी होती है जो हमारा वेरिएबल कंटेन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का नेम जो है हम उसको स्टोर करते हैं इन अ स्ट्रिंग वैल्यू, जबकि जो पर्सन की एज होती है वो स्टोर होती है एज इंटीजर. तो स्ट्रिंग हमें बताता है कि उसके अंदर क्या है, अल्फाबेट, दैट मींस कैरेक्टर्स है, और इंटीजर हमें बताता है कि उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके की वैल्यू अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो. ये एक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है जो कंटेन करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज. हर एक डेटा टाइप रिक्वायर करता है कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट. तो पाइथन के पास ग्रेट सेट ऑफ यूजफुल डेटा टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू. पाइथन सपोर्ट करता है फॉलोइंग डेटा टाइप्स को. सबसे पहले आते हैं इंटीजर. ये हमारे इंटीजर या फिर इंट होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को जस्टिफाई करते हैं. यहाँ पे हम कोई भी डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करते. दिस इज एन इफेक्टिवली नो लिमिट ऑफ हाउ लॉन्ग एन इंटीजर वैल्यू कैन बी. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5. तो हमने यहाँ पे a वेरिएबल के अंदर 10 एक हमने इंटीजर वैल्यू दे दी. फ्लोट होता है जो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को और जो डेसिमल पॉइंट के साथ में लिखे जाते हैं, जैसे 3.14. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं वो डेसिमल पॉइंट में आती है. स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है टेक्सचुअल डेटा को इन कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि जो स्ट्रिंग टाइप है वो ये बताता है कि स्ट्रिंग टाइप को हम पाइथन के अंदर str भी बोलते हैं, और ये बताता है कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल में स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर स्टोर किए जा रहे हैं. फॉर्म बाय लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट. फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल्स टू रितु, राजस्थान एक्सेट्रा. हम यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट का यूज करते हैं टू एंटर स्ट्रिंग. Now what are variables? तो वेरिएबल नेम होता है ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पे हम अपनी वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, जिनको हम बाद में चेंज और एक्सेस कर सकते हैं. तो जो नेम्स हम देते हैं वेरिएबल को उन्हें बोला जाता है आइडेंटिफायर्स. इन पाइथन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज पाइथन के ये डायनामिकल लैंग्वेज है एंड ये ऑल्सो आइडेंटिफाई करती है वेरिएबल टाइप ऑटोमेटिकली. असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल. तो जब भी आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हो तो आप क्या करते हो, इक्वल्स टू सिंबल का यूज करते हो, एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल गोज ऑन द लेफ्ट. इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल का नेम आता है, और जो वैल्यू हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो राइट साइड में आता है. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे 5 क्या है, ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, ये हमारा एक डेटा टाइप है. बट a क्या है, ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं. तो फ्लोट पॉइंट के लिए हम पॉइंट लगा देंगे, और नेम जैसे ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू. प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं जब भी हमें रिजल्ट को डिस्प्ले कराना होता है ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन. इसका हम यूज करते हैं टू प्रिंट स्पेसिफाइड मैसेज, जैसे प्रॉम्प्ट प्रिंट एंजॉय पाइथन. तो ये डिस्प्ले करेगा एंजॉय पाइथन ऑन द आउटपुट स्क्रीन. प्रिंट फंक्शन सपोर्ट करता है मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस टू फॉर्मेट द आउटपुट सच एज /n यानी कि न्यू लाइन, /t यानी कि टैब स्पेस और /r यानी कि कैरेज रिटर्न. पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इसका मतलब पाइथन डिफरेंशिएट करता है बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. फॉर एग्जांपल प्रिंट इज एन एक्ट वर्ड एज अ वर्ड इन पाइथन व्हाइल प्रिंट इज अ वैलिड कमांड. प्रिंट विद कॉमा.
तो प्रिंट विद कॉमा का हम यूज करते हैं जब भी हमें स्पेस इंसर्ट कराने होते हैं बिटवीन टू वर्ड्स। तो इफ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज जो सेपरेटेड हो कुछ स्पेस के साथ में, तब हम कॉमा का यूज करते हैं टू प्रिंट स्टेटमेंट्स बिटवीन द वैल्यूज। नाउ यू कैन यूज द कॉमास इन अ प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट कॉलम्स ऑफ आउटपुट। प्रोग्राम 1, आप यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हो टू प्रिंट द नेम ऑफ 4 कंट्रीज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट अमेरिका, यूके, यूएसए, और हमने तो सबके बीच में कॉमा दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक एक थोड़ा थोड़ा स्पेस सबके बीच में आ जाएगा। नाउ प्रिंट विद स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन करेक्टर। तो समटाइम्स हमें क्या कराना होता है, हमें प्रिंट कराना होता है कोई ब्लैंक लाइन इन आवर पाइथन प्रोग्राम। तो जो न्यू लाइन करेक्टर है हम उसका यूज करते हैं टू एंड अ लाइन एंड स्टार्ट अ लाइन। यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का भी यूज करेंगे। तो अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं बाय यूजिंग स्लैश एन फंक्शन। तो हमने यहाँ क्या किया है, स्लैश एन फंक्शन का यूज किया। तो प्रिंट हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को वैल्यू दे दी और फिर हमने किया a कॉमा स्लैश एन, b कॉमा स्लैश एन, c। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एक लाइन का गैप बीच में आ जाएगा। तो अगर हम स्लैश t का यूज करते हैं तो यहाँ पे बैक स्पेस स्लैश एक स्पेशल करेक्टर है जिसे हम एस्केप करेक्टर भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो स्लैश प्लस है उसका यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट सर्टेन व्हाइट स्पेस करेक्टर। इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल कॉलम लोकेशन। जब भी हम यूज करते हैं स्लैश प्लस का विद प्रिंट स्टेटमेंट तो वैल्यू डिस्प्ले होता है विद टैब स्पेस बिटवीन देम। नाउ प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट लिख रहे हैं, कोमल का इतना, मुराली का इतना, सूरज का इतना। तो प्रिंट करा रहे हैं विद स्लैश टी। दिस इज हाउ द स्पेस इज क्रिएटेड। एक टैब की का स्पेस यहाँ पे आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन। तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं जब भी हमें यूजर से कुछ इनपुट कराना होता है व्हाइल अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो जो जनरल सिंटेक्स होता है ऑफ इनपुट फंक्शन इज एज फॉलोज, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट यानी कि मैसेज टू बी डिस्प्ले, फिर नेम इनपुट एंटर योर नेम, प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, इस तरीके से आएगा। इफ द इनपुट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड तो प्रोग्राम फ्लो विल बी स्टॉप्ड अंटिल द यूजर हैज गिवन एन इनपुट। जब तक हमारा यूजर इनपुट नहीं देगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। एंड हैज एंडेड विद इनपुट with the return key, text of the optional parameter that is the prompt will be printed on the screen। जो हमारे prompt के अपोजिट जो भी टेक्स्ट है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। एंड इनपुट इंटीजर वैल्यू वी यूज इंट एंड फ्लोट के लिए फ्लोट फंक्शन वैल्यूज अलोंग विद इनपुट। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम ऑफ द यूजर। हमने लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, देन प्रिंट करा रहे हैं हम नेम, इट इज अ नाइस नेम। तो हमने क्या आएगा हमारी स्क्रीन पे, एंटर योर नेम, फिर यूजर यहाँ पे अपना नेम डालेगा और फिर यहाँ पे आएगा आशीष इज अ नाइस नेम। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फॉलो करते हैं रूल्स ऑफ द चूजन लैंग्वेज। पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गाइडवेन रॉसम एंड रिलीज्ड इन 1991। व्हेन यू ओपन आइडल एक स्क्रीन अपीयर होती है, स्क्रीन को बोला जाता है पाइथन शेल विंडो। एंड ये जो 3 एरोज है इन्हें हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। We type the command in front of Python command prompt. Script mode का यूज करते हैं to write programming which contains more than one command or instructions. Python program files के पास हमेशा एक ending होती है with .py extension. Python has a great set of useful data types based on the type of value. String type को हम बोलते हैं str. Print function का यूज किया जाता है to display the result of any command on the screen. Let's do exercise of the chapter. First is tick the correct option. Python is basically an dash language, so it is an interpreted language. These are called prompt. Function that displays the result of any command on the screen. Print. Dash is a piece of data kept in computer's memory. Data types. Characters used to end a line and start a line in Python. /n. Dash is a data type representing textual data in computer programs. String. Now fill in the blanks. Programming language is designed to communicate between dash and computers, human. Data storage format that can contain a specific type or range of values is called data type. Dash is the prompt used in Python interactive mode. Dash are positive or negative whole numbers with no decimal point integers. Dash function is used to make the input from the user and then evaluate the expression. Input.
Dash represent real numbers and written in decimal point dividing the integer and fractional parts. Float. Let's do true false. Integer, float, and string are the types of Python statements. False. In Python, we can create program in both interactive and script mode. True. String is a data type representing textual data in computer programs. True. Python supports only one data type. False. Percent is used to assign a variable. False. Name given to variable is known as identifier. True. So students, this was your complete chapter about Python. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.